बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? We were discussing salam and istasna, in which we first of all discussed details about salam. The lecturer in front of you is the same, that is Dr. Sayyid Zulfikar Ali Shah. Let's discuss first of all the summary of the last lecture which we discussed in the last class before going towards whatever we want to do in the current lecture. So we discussed security, pledge and liability of the securities in the last lecture, disposing of the goods purchased on salam post execution scenarios के salam होने के बाद क्या क्या scenarios होते हैं, then salam based securitization, salam certificates and sukuk. This was a very important topic जो हमने discuss किया कि सलम बेस्ड सर्टिफिकेट्स जो है वो कैसे इशू होते हैं और सुकूक कैसे काम करता है एज ए मोड ऑफ फाइनेंसिंग. फिर हम लोगों ने समरी डिस्कस की फॉर द सलम रूल्स. देन सलम एज अ फाइनेंसिंग टेक्निक बाय बैंक्स, इसको डिटेल में डिस्कस किया जिसके अंदर एक केस स्टडी भी डिस्कस की. और फिर उसके बाद केस स्टडीज के बाद हम लोगों ने लेक्चर ख़त्म किया था. आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इस्लामिक बैंक्स फॉर सलम एंड पैरेलल सलम. देन विल टॉक अबाउट इस्तना, जिसको ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर भी बोलते हैं. इसके अंदर हम लोग डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इस्तना की बात करेंगे, प्राइस एंड इस्तना की बात करेंगे, पेनल्टी क्लॉज, डिले इन फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशंस. देन विल टॉक अबाउट बाइंडिंग नेचर ऑफ एन इस्तना कॉन्ट्रैक्ट. देन विल टॉक अबाउट गारंटीज. देन विल टॉक अबाउट पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग. देन विल टॉक अबाउट इस्तना एंड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. Then post execution scenario. Then we'll talk about potential of istasna, and after that we'll talk about risk management in istasna, and then of course at the end we'll talk about summary. So if you're ready, so let's start discussion. Accounting treatment by Islamic banks in salam and parallel salam. Initial recognition. Salam financing is recognized when paid to the seller or made available to him. Parallel salam is recognized when the bank receives the price, and initial measurement of capital or price will be made at the amount of cash paid or at fair value of the asset if capital is provided in kind. Then measurement at the end of the financial period. कैसे measure करते हैं? Capital is measured in the same way as in the initial measurement. However, if delivery of the commodity is not probable in full or in part, or its value declines, the Islamic bank will make provision for the estimated deficit. Salam financing transactions are presented as salam financing in financial statements. Then parallel salam transactions are presented as liability in financial statements. Receipt of the commodity. Commodity receive करने के बाद कैसे deal करते हैं? A commodity received is recorded as an asset at historical cost. For receipt of commodities of different quality, if the market value is equal to the contracted value, the commodity shall be recorded at book value. If the market value is lower than the book value, the commodity shall be measured and recorded at market value at the time of delivery, and the difference shall be recognized as loss. Failure to receive the commodity on the due date. If delivery is extended, the book value shall remain as it is. If the salam contract is cancelled and the client does not repay the capital, the amount shall be recognized as a receivable due from the client. Failure to receive the commodity due to the client's misconduct. If the salam contract is cancelled and the client does not repay the capital, the amount shall be recognized as a receivable due from the client. In the case where securities pledged for the commodity are less than its book value, the difference is recognized as a receivable due from the client, or alternatively a credit to the client if the proceeds are more than the book value. Measurement of the value of the commodity at the end of a financial period. A commodity acquired through salam shall be measured at the lower of the historical cost or the cash equivalent value, and if the cash equivalent value is lower, the difference shall be recognized as loss. Recognition of result. Delivery of the commodity. Upon delivery of the commodity in a parallel salam transaction, the difference between the amount paid by the client
and the cost of the commodity shall be recognized as profit or loss. तो ये तो था सलम के केस के अंदर सलम ट्रांजैक्शंस की डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैसे हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं. अब बात शुरू करते हैं इस्तिस्ना की, विच इज ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर. definition and concept of istisna. Istisna, like salam, is a special kind of bay where the sale of a commodity is transacted before the commodity comes into existence. ये भी सलम ही की तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, जिसमें सेल किसी कमोडिटी की पहले हो जाती है उसकी एग्जिस्टेंस से भी. The legality of istisna is accepted by the Sharia scholars because it does not contain any prohibition. इसकी लीगैलिटी इंश्योर की जाती है, एक्सेप्टेबल है ज्यूरिस्ट से. क्यों? क्योंकि इसकी कहीं पे कोई ममानियत नहीं है. इट हैज ऑलवेज बीन अ कॉमन प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ईज फॉर ह्यूमन बींग्स. renowned contemporary jurist Zuhili writes, Istisna evolved into Islamic jurisprudence historically due to specific needs in the areas of manual work. इस्तिस्ना इन्वॉल्व हुआ इस्लामिक jurisprudence के अंदर तारीखी तौर पर कुछ स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए मैनुअल काम में, लेदर प्रोडक्ट्स, शूज, कारपेंट्री एटसेट्रा. However, it has grown in the modern era as one of the contracts that make it possible to meet major infrastructure and industrial projects such as the building of ships, airplanes and other large machinery. लेकिन मॉडर्न दौर में ये ज़रूरी हो गया कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अंदर आ गए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें बिल्डिंग ऑफ शिप्स, एयरप्लेन्स और लार्ज मशीनरी की भी बात आ जाती है. अकॉर्डिंगली द prominence of the commission to manufacture contract has increased with the scope of financed projects. तो ये with the passage of time increase हुआ. Istisna is a valid contract and a normal business practice. As a financing mode, it has been legalized on the basis of the principle of istihsan, public interest. Public interest की basis के ऊपर इसको legal करार दिया गया. Istisna is an agreement culminating in a sale at an agreed price whereby the purchaser places an order to manufacture, assemble or construct anything to be delivered at a future date. इस्तिस्ना एक एग्रीमेंट है सेल का जिसके अंदर जो उसका परचेजर है वो ऑर्डर प्लेस करता है किसी चीज को असेंबल करने का, कंस्ट्रक्ट करने का, जो कि डिलीवर होगी किसी फ्यूचर डेट पर. It becomes an obligation of the manufacturer or the builder to deliver the asset with agreed specifications at the agreed period of time. ये मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जिस चीज के बारे में उसने ये एग्रीमेंट किया उसको एग्जैक्ट डेट के ऊपर उसको डिलीवर करेगा. As the sale is executed at the time of entering into the istisna contract, the contracting parties need not renew an exchange of offer and acceptance after the subject matter is prepared. अब चूंकि सेल एग्जीक्यूट होती है एट द टाइम ऑफ इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट, तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनको जरूरत नहीं होती कि वो एक नए सिरे से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करें जब प्रोडक्ट तैयार हो गई. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुराबहा टू परचेज ऑर्डर. ये मुख्तलिफ है मुराबहा टू परचेज ऑर्डर वाले कॉन्ट्रैक्ट से, which requires formal offer and acceptance by the parties when possession of the item to be sold is taken by the bank. जिसके अंदर ऑफ कोर्स जब पोजीशन बैंक ले लेता है तो एक दफा फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है. Istisna can be used for providing the facility of financing the manufacture or construction of house, plant, projects, building of bridges, roads and highways. Istisna इस्तेमाल किया जा सकता है facility of financing provide करने के लिए, construction of houses के लिए, bridges के लिए, कुछ projects या roads और highways वगैरह का. The price must be fixed with the consent of the parties involved. प्राइस जो है वो ऑफ कोर्स दोनों पार्टीज की मर्जी के साथ डिसाइड होगी. इन इस्तिस्ना द मैन्युफैक्चरर अरेंजेस बोथ द रॉ मटेरियल एंड द लेबर. इस्तिस्ना में मैन्युफैक्चरर अरेंज करता है रॉ मटेरियल भी और लेबर भी. इफ मटेरियल इज सप्लाइड बाय द परचेजर एंड द मैन्युफैक्चरर इज रिक्वायर्ड टू यूज हिज लेबर एंड स्किल ओनली, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उजरा. अगर मटेरियल सप्लाई होगा परचेजर की तरफ से और मैन्युफैक्चरर जो है वो लेबर या स्किल्स देगा सिर्फ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उजरा कहलाएगा एंड नॉट ऑफ इस्तिस्ना. इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ इस्तिस्ना इन डिटेल. एंड इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बाइंडिंग होती है दोनों पार्टीज के ऊपर.
The manufacturer is obliged to supply the subject matter with the agreed specifications. मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी होती है सप्लाई करना सब्जेक्ट मैटर को एग्रीड स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक, एंड द ऑर्डरर और बायर इज ऑब्लाइज्ड टू एक्सेप्ट द एसेट ऑफ स्टिपुलेटेड टाइप. और जो ऑर्डरर या बायर है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एक्सेप्ट करेगा उस एसेट को जो उसने डिसाइड किया था. क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड मेक द एग्रीड पेमेंट. उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करके पेमेंट करना. The parties may agree to a period during which the manufacturer will be responsible for any defects or the maintenance of the subject matter. Parties agree हो सकती हैं उस पीरियड में जहां पर मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी डिफेक्ट्स का या मेंटेनेंस का जो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आ रही है. नाउ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इस्तिस्ना क्या होगा? मैटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इस्तिस्ना. Istisna is a sale contract applicable to items to be manufactured that are identified by specification, not by designation. Istisna एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे आइटम्स के बारे में जिनको भी मैन्युफैक्चर करना होता है जो आइडेंटिफाई होते हैं स्पेसिफिकेशन के थ्रू, डेजिग्नेशन के थ्रू नहीं. This contract is valid only for those objects that have to be manufactured or constructed. ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो भी मैन्युफैक्चर होने हैं और कंस्ट्रक्ट होने हैं. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेलर हिमसेल्फ मैन्युफैक्चर्स द आइटम. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेलर खुद से मैन्युफैक्चर करे आइटम को अनलेस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक उसमें बताया ना क्या हो. द सब्जेक्ट ऑफ इस्तिस्ना, द थिंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड और कंस्ट्रक्टेड, मस्ट बी नोन एंड स्पेसिफाइड टू द एक्सटेंट ऑफ रिमूविंग एनी इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ इट्स काइंड, टाइप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. सब्जेक्ट ऑफ इस्तिस्ना जो है वो उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी काइंड, टाइप, क्वालिटी और क्वांटिटी का पता होना जरूरी है. द सेलर्स एग्री टू प्रोवाइड द सब्जेक्ट मैटर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमन हैंड्स. सेलर एग्री करता है सब्जेक्ट मैटर को ट्रांसफॉर्म करने में रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो कि इंसान अपने हाथ से मैन्युफैक्चर करते हैं. इट इज इनवैलिड फॉर नेचुरल थिंग्स और प्रोडक्ट्स लाइक एनिमल्स, कॉर्न, फ्रूट एटसेट्रा. ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है नेचुरल चीजों के लिए जैसे जानवर, कॉर्न या फ्रूट शामिल हैं. बोथ यूनिक एंड होमोजीनियस टाइप्स ऑफ एसेट्स आर कवर्ड अंडर इस्तिस्ना प्रोवाइडेड देयर स्पेसिफिकेशंस आर एग्रीड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. दोनों यूनिक और एक जैसी टाइप्स ऑफ एसेट्स जो हैं वो इस्तिस्ना में कवर होती हैं अगर उनकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो एग्रीड हो गई एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल, आइटम्स ऑफ यूनिक डिस्क्रिप्शन दैट हैव नो रेगुलर मार्केट have no substitute in the market and where the value of each unit of that type of goods may be different are covered by istisna. मिसाल के तौर पर अगर आइटम्स जो कि यूनिक डिस्क्रिप्शन की हैं वो रेगुलरली मार्केट के अंदर ट्रांजैक्ट नहीं होती, उनका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, उनकी वैल्यू ऑफ यूनिट जो है वो उनकी टाइप ऑफ गुड्स जो है उससे डिफरेंट होती है और ये तमाम के तमाम इस्तिस्ना के अंदर कवर होती हैं. इस्तिस्ना इज नॉट कन्फाइंड टू व्हाट द मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ मेक्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट. इस्तिस्ना सिर्फ उन चीजों तक बाउंड नहीं है जो कि चीजें खुद मैन्युफैक्चर होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू. द स्पेसिफिकेशंस डिमांडेड बाय द बायर एंड एग्रीड बिटवीन द पार्टीज आर इंपॉर्टेंट. ये स्पेसिफिकेशंस जो बायर डिमांड करता है और पार्टीज के दरमियान एग्री होती हैं ये इंपॉर्टेंट है. द सेलर और मैन्युफैक्चरर विल बी फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशन इफ ही ब्रिंग्स इन एन एसेट कन्फर्मिंग टू ऑल एग्रीड स्पेसिफिकेशंस. सेलर या मैन्युफैक्चरर जो है उसकी जिम्मेदारी होगी इसको फुलफिल करना जो कि एसेट एक एग्रीड स्पेसिफिकेशन के तहत बनाया जाएगा. अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट द सेलर विल हिमसेल्फ मैन्युफैक्चर द एसेट. जब तक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन ना हो कि ये सेलर को खुद से मैन्युफैक्चर करना है. इन अदर वर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस. दूसरे लफ्जों में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक बाइंडिंग होता है. It is not permissible that the subject matter of an istisna contract be an existing and identified asset. ये इजाजत नहीं है किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर की इस्तिस्ना के लिए कि वो एग्जिस्ट करता हो और आइडेंटिफाइड हो. फॉर एग्जाम्पल, it is invalid for an Islamic bank to conclude a contract to sell a particular designated car from a factory on the basis of istisna. मिसाल के तौर पर इस्लामिक बैंक के लिए इनवैलिड होगा कि वो किसी डेजिग्नेटेड कार को फैक्ट्री
से इस्तिस्ना के थ्रू फाइनेंस कराए, but an asset that has already been produced by the seller or by another can become the subject matter of istisna, provided that it is not identified in the contract and the contract identifies specification only. जबकि अगर वो कार किसी और थर्ड पार्टी ने मैन्युफैक्चर की और उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, सिर्फ स्पेसिफिकेशंस बताई गई, तो वो इस्तिस्ना के अंदर लाए कर सकती है. An istisna contract may be drawn for real estate developments on designated land owned either by the purchaser or the contractor. इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स के थ्रू डेजिग्नेटेड लैंड के बारे में जो कि परचेजर या कॉन्ट्रैक्टर कोई भी उसको ओन करता है, और ऑन लैंड इन विच ईदर ऑफ देम ओन्स द यूजुफ्रक्ट, या उस लैंड पर जिसका राइट टू यूज जो है दोनों में से किसी के पास भी है. It is allowed because the contract involves the construction of specified buildings. ये allowed है चूंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड बिल्डिंग पे बेस करता है. That will be built and sold according to the specification. जो बनाई जाएगी और बेची जाएगी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक. And in this case, the contract of istisna does not specify a particular identified place. और इस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इस्तिस्ना जो है वो स्पेसिफाई नहीं करता किसी भी पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड प्लेस को. एन इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट मस्ट डेफिनेटली स्टेट इन क्लियर टर्म्स द टाइप, डायमेंशंस, पीरियड एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द एसेट. इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर कट डिफाइन करना चाहिए कि डायमेंशन टाइप क्या होगी, कितना पीरियड रिक्वायर होगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द एसेट क्या होगी. The asset can be manufactured or produced by any of a specific manufacturer. Asset manufacture या produce किया जा सकता है किसी भी specific manufacturer के through, और manufactured from specific materials or any materials available in the market. किसी specific material से भी manufacture किया जा सकता है, और materials जो कि available है market के अंदर उनसे भी manufacture किया जा सकता है, as may be agreed between the two parties. जो भी agree हो जाए दो parties के दरमियान. The manufacturer or seller may enter into a contract with the manufacturer to provide the subject matter of istisna. Manufacturer या seller जो है वो enter हो सकता है किसी भी contract में, एक contract में जो कि manufacture करेगा subject matter को istisna के अंडर. On this basis, the banks may undertake financing based on istisna by getting the subject of istisna manufactured through another such contract. इन बेसिस के ऊपर बैंक्स जो है वो फाइनेंसिंग अंडरटेक कर सकते हैं इस्तिस्ना की बेसिस के ऊपर, बाय गेटिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इस्तिस्ना मैन्युफैक्चर थ्रू अनदर सच कॉन्ट्रैक्ट, किसी और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको मैन्युफैक्चर करा के. दस इस्लामिक बैंक्स कैन सर्व बोथ एज मैन्युफैक्चरर्स एंड परचेजर्स इन इस्तिस्ना. तो इसका मतलब हुआ कि इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो एज ए मैन्युफैक्चरर भी सर्व कर सकते हैं और एज ए परचेजर इन इस्तिस्ना भी सर्व कर सकते हैं. थर्ड आइटम इज प्राइस इन इस्तिस्ना. प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? द प्राइस इन इस्तिस्ना कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, एनी टेंजिबल गुड्स और यूजुफ्रक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट्स. इस्तिस्ना में प्राइस जो है वो कैश भी हो सकती है, कोई टेंजिबल गुड्स भी हो सकती हैं, या किसी आइडेंटिफाइड एसेट का राइट ऑफ यूज भी हो सकता है. Usufruct as consideration for an istisna contract is relevant to situations where government institutions offer usufruct of the asset being built for an agreed time period, commonly known as build, operate and transfer. Usufruct as a consideration जो है istisna के अंदर वो relevant है ऐसी situations में जहाँ पे government institutions offer करते हैं right to issue अगर building बना ली जाए, और ये commonly कहा जाता है कि build, operate and transfer. बनाओ, इस्तेमाल करो और फिर उसको ट्रांसफर करो, BOT. The price should be known in advance to the extent of removing ignorance or lack of knowledge and dispute. प्राइस को एडवांस में तय होना चाहिए ताकि इग्नोरेंस को रिमूव किया जा सके और लैक ऑफ नॉलेज या डिस्प्यूट को अवॉइड किया जा सके. It is permissible that the price of istisna transactions varies in accordance with the variations in delivery date. इसकी इजाज़त है कि जो प्राइस ऑफ इस्तिस्ना ट्रांजैक्शन है वो वेरी कर सकती है डिफरेंट डिलीवरी डेट की वेरिएशंस के साथ. देयर इज ऑल्सो नो ऑब्जेक्शन टू अ नंबर ऑफ ऑफर्स बीइंग सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन. इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस जो हैं वो नेगोशिएशन के थ्रू रिलैक्स किए जाएं,
provided that eventually only one offer is chosen for concluding the istisna contract. लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस तो होंगी, एक ऑप्शन का डिसाइड होना जरूरी है istisna के अंदर. This is to avoid uncertainty and lack of knowledge. ये इसलिए किया जाता है कि अनसर्टेनिटी को और लैक ऑफ नॉलेज को अवॉइड किया जाए, दैट मे लीड टू डिस्प्यूट, जिसके थ्रू मसाइल कॉज हो सकते हैं. द प्राइस वंस सेटल्ड कैन नॉट बी यूनिलेटरली इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. प्राइस एक दफा सेटल हो जाए तो उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता सिर्फ एक पार्टी की तरफ से. हाउएवर, एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ह्यूज एसेट्स में इन्वॉल्व मोर टाइम, लेकिन चूंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बड़े बड़े एसेट्स जो हैं वो ज्यादा टाइम रिक्वायर करते हैं, समटाइम्स नेसेसिटेटिंग मेनी चेंजेस, जिसमें काफी चेंजेस दरकार होती हैं. समटाइम्स द प्राइस कैन बी रीएडजस्टेड बाय द म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. प्राइस को रीएडजस्ट किया जा सकता है दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ, बिकॉज ऑफ मेकिंग मटीरियल मॉडिफिकेशंस टू द आइटम टू बी मैन्युफैक्चर्ड. चूंकि जो मटेरियल मॉडिफिकेशंस हैं वो हम आइटम जिसको बना रहे हैं उसमें की जा सकें, और ड्यू टू अनफोर्सीन कंटिजेंसीज और चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ द इनपुट्स. कोई जिनको हम फोरकास्ट नहीं कर सके कंटिजेंसीज को प्राइसेस कैलकुलेट करते हुए, या कोई जो हमारे इनपुट्स हैं उनकी प्राइसेस के अंदर कोई चेंज आ जाता है. इट इज नॉट नेसेसरी इन इस्तिस्ना दैट द प्राइस इज पेड इन एडवांस. इस्तिस्ना में यह भी जरूरी नहीं है कि प्राइस एडवांस में पे की जाए, unlike salam in which spot payment of price is necessary. The price can be paid in installments within the agreed time period and can also be linked with the completion stages. Price installments में पे की जा सकती है किसी भी agreed time period के दौरान, और इसको लिंक भी किया जा सकता है completion stages के साथ. जैसे फॉर एग्जाम्पल इतने % हम लोग उस वक्त देंगे जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, इतने % तब देंगे जब लेंटर डल जाएगा, इतने % तब देंगे जब इसका प्लस्तर हो जाएगा. इस तरीके से हम completion stages के साथ भी इसको लिंक कर सकते हैं. Against the general rules set out for salam, contemporary scholars have legalized it on the basis of analogy and istihsan as it involves personal labor, effort and commitment of the seller. जनरल रूल जो कि सलम के लिए तय किए जाते हैं, जो हमारे दौरे हाजिर के स्कॉलर्स हैं उन्होंने लीगलाइज किया है इस एनालॉजी को, और इस्तेहसान की बेसिस पर, चूंकि इसमें पर्सनल लेबर इन्वॉल्व होती है, एफर्ट इन्वॉल्व होती है, कमिटमेंट ऑफ सेलर इन्वॉल्व होती है, विच मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर टू अ लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट जैसा बना देता है. इन विच इट इज परमिसिबल टू डेफर द पेमेंट ऑफ द रेंटल, जिसमें पेमेंट ऑफ रेंटल जो है वो डेफर्ड किया जा सकता है. दैट बीइंग कंसिडर्ड अ सेल ऑफ डेट फॉर डेट, जिसको सेल कंसिडर किया जाता है डेट फॉर डेट के लिए. फर्दर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज प्लांट्स में रिक्वायर अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. इसके अलावा बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं उनको लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होते हैं. एंड ऑल्सो पेमेंट थ्रू इंस्टॉलमेंट्स, और इसमें पेमेंट्स भी चाहिए होती हैं किस्तों में, अकॉर्डिंग टू द पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी पेस को इंक्रीज किया जा सके. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इस्तिस्ना कैन नॉट बी ड्रॉन अप ऑन द बेसिस ऑफ मुराबाहा सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इस्तिस्ना जो है वो मुराबाहा सेल के थ्रू नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, by determining the price of istisna on a cost plus basis, यानी कि इसमें हम cost plus basis पे इसकी प्राइस को तय नहीं कर सकते. This is because the subject matter of मुराबाहा should be something already in existence. चूंकि मुराबाहा का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस होना जरूरी है. Its cost should be known, कॉस्ट का पता होना चाहिए, and it should be owned by the seller before conclusion of मुराबाहा, और ये उसकी ओनरशिप में भी होना चाहिए, सो दैट अ प्रॉफिट मार्जिन में बी एडेड टू दैट, ताकि प्रॉफिट मार्जिन सर्टेनिटी के साथ ऐड हो सके. नन ऑफ दीज इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इस्तिस्ना. द बैंक मे बी एक्टिंग ईदर इन द कैपेसिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर और ऑफ द परचेजर एंड मे गिव और डिमांड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. अर्बून, बैंक मैन्युफैक्चरर के तौर पे भी काम कर सकता है, परचेजर के तौर पे भी काम कर सकता है, और डिमांड या दे सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी, which may be considered as part of the price if the contract is completed, जिसको प्राइस का हिस्सा समझा जा सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, and can be forfeited if the contract is resigned, और इसको जब्त किया जा सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन हो जाए. However, the amount forfeited may be restricted to the amount of actual damage suffered, लेकिन जो अमाउंट जब्त होगी वो लॉस के अमाउंट के बराबर होनी चाहिए.
एंड द रिमेनिंग अमाउंट में प्रेफरेबली भी रिटर्न टू द कस्टमर, और जो बाकी रकम है वो वापस भी की जा सकती है. नेक्स्ट इज पेनल्टी क्लॉज, डिले इन फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशंस. An istasna contract may also contain a penalty clause stipulating an agreed amount of money for compensating the purchaser adequately if the manufacturer is late in delivering the asset. तो अगर ये लेट हो जाए तो उस पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है. Such compensation is permissible only if the delay is not caused by intervening contingencies. ये compensation अलाउ होती है अगर जो डिले हुआ वो कुछ कॉज नहीं हुई intervening contingencies की वजह से. Further, it is not permitted to stipulate a penalty clause against the purchaser for default in any payment. इसके अलावा इसकी इजाज़त है एक पेनल्टी क्लॉज स्टिपुलेट करना अगेंस्ट द परचेजर कि अगर वो डिफॉल्ट कर गया पेमेंट के अंदर, बिकॉज दिस वुड बी रिबा, चूंकि वो रिबा होगा. अ वॉलंटरी रिबेट फॉर प्री पेमेंट इज परमिसिबल. अगर पेमेंट पहले हो जाए तो उसमें रिबेट भी दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था. It can be agreed, in other words, between the parties that in the case of delay in delivery, the price shall be reduced by a specified amount. ये भी एग्री किया जा सकता है दूसरे लफ्जों में पार्टीज के दरमियान कि ये जो डिले इन डिलीवरी है, प्राइस जो है उसमें रिड्यूस कर दी जाएगी स्पेसिफिक अमाउंट के साथ. The scholars have contended this on the basis of analogy. The classical jurists allowed such a condition in ijara. For example, if a person hires the service of a tailor, he may tell him that the wage will be 10 dirhams if he prepares the cloth within a week and 12 if within 2 days. जैसे बाजू का कपड़े आप सिलने के लिए देते हैं टेलर को, तो आप कहते हैं अगर एक हफ्ते में तैयार करोगे तो 10 दिरहम, अगर आप इसको 2 दिनों में तैयार करोगे तो 12 दिरहम. तो by analogy, experts allow a penalty clause in the istasna agreement in the case of a delay in delivery, supply or construction of the subject of istasna. तो इस सिचुएशन में जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इस्तिस्ना एग्रीमेंट में भी अगर डिले हो जाए तो उसके अंदर ऑफ कोर्स आप पेनल्टी क्लॉज डाल सकते हैं. इन फिक दिस प्रिंसिपल इज टर्म्ड शर्ते जजाई पेनल्टी कंडीशन. फिक में इस प्रिंसिपल को शर्ते जजाई बोलते हैं, और द कंडीशन ऑफ डिक्रीजिंग द प्राइस ऑन अकाउंट ऑफ अ डिले इन डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इस्तिस्ना. This reduction will enhance the income of the orderer purchaser. ये जो रिडक्शन होगी इसमें ये इनकम के तौर पे ऐड होगी, एंड इट विल नॉट गो टू चैरिटी, चैरिटी में नहीं जाएगी, एज इन केस ऑफ ऑल अदर मोड्स. बाकी तमाम मोड्स के अंदर अगर कोई भी चेंज आता है तो वो चैरिटी में जाता है, यहाँ पर नहीं जाएगी. दिस स्पेशल परमिशन इज ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट इस्तिस्ना टाइमली कंप्लीशन ऑफ द वर्क डिपेंड्स ऑन लेबर एंड कमिटमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर. If he does not devote full time to completion of the job of a particular contract and engages in other contracts in his quest for more and more orders and maximum earnings, he can be fined. चूंकि यहाँ पर उसने खुद से इसके ऊपर टाइम लगाना होता है, और अगर वो वक्त पे चीज़ों को फुलफिल नहीं करता तो वो इसमें रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम पकड़ ले, जिसको वो फुलफिल नहीं कर सकता तो उसको फाइन होना चाहिए. This benefit would go to the purchaser who might suffer in the case of non-delivery at the stipulated time. उसकी इनकम में ऐड होना चाहिए क्योंकि शायद वो इस डिले की वजह से उसको कोई लॉस भी हो जाए. Any such undertaking by the manufacturer would be binding on him. Contrary to this, in salam, any penalty taken for late delivery by the salam seller will go to charity. वहाँ पर salam के अंदर ये charity में जाती है, because in salam the price paid in advance creates a debt liability on the seller which has to be paid without any increase. Even this penalty is permissible only if the delay is not caused by intervening contingencies. यहाँ पर भी ये पेनल्टी सिर्फ उस वक्त एक्टिव होती है जब डिले जो है वो कोई इंटरवीनिंग कंटिजेंसीज की वजह से नहीं हुआ. However, it is not permitted to stipulate a penalty clause against the purchaser. लेकिन इसकी इजाज़त नहीं है कि कोई पेनल्टी क्लॉज स्टिपुलेट की जाए परचेजर के अगेंस्ट फ्रॉम द बैंक फॉर एग्जांपल फॉर डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, अगर वो पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाता है. नेक्स्ट इज द बाइंडिंग नेचर ऑफ एन इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट. Istasna is non-binding as long as the manufacturer does not start work on the subject matter of the contract. Istasna non-binding होता है जब तक manufacturer subject matter के ऊपर काम शुरू नहीं कर देता. Therefore, before the manufacturer starts work, any one of the parties may cancel the contract by giving notice to the other. अगर काम शुरू नहीं हुआ तो दोनों में से कोई पार्टी भी प्रायर नोटिस देकर उसको कैंसिल कर सकती है.
However, after the manufacturer has started the work, the contract cannot be cancelled by the buyer unilaterally. अगर एक दफ़ा काम शुरू हो जाए तो बायर इसको अपने तौर पर कैंसिल नहीं कर सकता. The majority of contemporary Sharia scholars, civil law in some Muslim countries like Jordan and Sudan, the Unified Arab Law proposed by the League of Arab Countries and the Fiqh Council of the OIC treat istasna as a binding contract, provided that certain conditions are fulfilled. ये तमाम लोग अगर कुछ conditions fulfill हों तो istasna को एक binding contract consider करते हैं. If the asset conforms to the specifications agreed at the time of the istasna contract, the purchaser is bound to accept the asset and he cannot exercise the option of inspection. He, however, has the option of defect and the option of specified quality, meaning that if the asset has any proven defect or lacks the agreed specifications, the purchaser has the right to be indemnified. Next is guarantees. The bank, acting either in the capacity of the manufacturer or of the ultimate purchaser, can give or demand security. बैंक जो कि मैन्युफैक्चरर की कैपेसिटी में काम कर रहा है या अल्टीमेट परचेजर है, ये सिक्योरिटी डिमांड कर सकता है, कोलैटरल और अ परफॉर्मेंस बॉन्ड टू इंश्योर दैट द वर्क इज परफॉर्म्ड विद इन द एग्रीड टाइम. इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि काम जो है वो वक्त पे हो जाएगा एंड एज पर स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक होगा. इट कैन ऑल्सो गेट अर्बून विच विल ईदर बी पार्ट ऑफ द प्राइस इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फुलफिल्ड. ये अर्बून भी डिमांड कर सकता है जो कि प्राइस का हिस्सा होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाता है, और फॉरफीटेड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइंडेड, और जब्त हो जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिजाइन होता है. However, it is preferable that the amount forfeited be limited to an amount equivalent to the actual damage suffered. लेकिन जो अमाउंट फॉरफीट की जाए वो एक्चुअल डैमेज के साथ मैच करनी चाहिए. कोई भी इसका डिफरेंस है तो दैट वुड बी पेड बैक. नेक्स्ट इज पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्टिंग. इस्तिस्ना is not confined to what the manufacturer himself makes. इस्तिस्ना सिर्फ उस हद तक confined नहीं है कि मैन्युफैक्चरर ने जो खुद बनाना है. And if the contract is silent or it expressly allows such, the seller or supplier can get it manufactured as per the specifications given in the contract from anyone else. तो ये किसी और से भी तैयार कराया जा सकता है उनकी specifications देकर. Financial institutions as sellers would contract with someone else to manufacture the same. Financial institutions जो हैं as a seller वो किसी और से manufacture कराते हैं. This could be a case of a parallel istisna contract. ये parallel istisna contract का केस होगा. An istisna contract shall be entered into on the one hand between the bank and a customer. Istisna contract एक तरफ तो ये होगा between bank और customer, while on the other hand the bank may enter into a parallel istisna with a third party. जबकि बैंक पैरेलल इस्तिस्ना में एंटर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ, जिसे कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे, फॉर प्रेपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फर्स्ट इस्तिस्ना, जिसके थ्रू उसको कहेगा कि ये फर्स्ट इस्तिस्ना को मैन्युफैक्चर कर दो. द डिलीवरी डेट ऑफ द पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट प्रीसीड द डेट ऑफ द ओरिजिनल इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट. उससे पहले उसके बाद नहीं होनी चाहिए. इन वन कॉन्ट्रैक्ट द बैंक विल बी द बायर एंड इन द सेकेंड द सेलर. पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में बैंक बायर होगा और दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में सेलर होगा. Ownership related risks of the two contracts will remain separate and will have to be borne by the respective parties so long as the asset is not transferred to the other. जो ओनरशिप रिस्क हैं वो दोनों के सेपरेट होंगे और ऑफ कोर्स जब तक वो ट्रांसफर नहीं हो जाते अपने अपने पास रहेंगे. Each of the two contracts shall be independent of the other. हर एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा. They cannot be tied up in a manner whereby the rights and obligations of one contract are dependent on the rights and obligations of the other. वो इस तरीके से एक दूसरे से बांधे नहीं जा सकते कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एक कॉन्ट्रैक्ट के डिपेंड कर रहे होंगे किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स और रिटर्न्स के ऊपर. फर्दर पैरेलल इस्तिस्ना इज अलाउड विद अ थर्ड पार्टी ओनली. पैरेलल इस्तिस्ना जो है वो तीसरी पार्टी के साथ ही अलाउ होगा. It is permissible for the bank to buy items on the basis of a clear and unambiguous specification and to pay. इसकी इजाज़त है कि बैंक चीज़ों को खरीद सके बिल्कुल क्लियर और अनएम्बिगुअस स्पेसिफिकेशंस के ऊपर और उसको पे करे with the aim of providing liquidity to the manufacturer, ताकि मैन्युफैक्चरर को लिक्विडिटी दी जा सके. The price in cash when the contract is concluded. Subsequently, the bank may enter into a contract with another party in order to sell in the capacity of manufacturer or supplier items whose specifications conform to the wishes of that other party.
on the basis of parallel istisna and fulfill its contractual obligations accordingly. Next is istisna and agency contract, the very important item. The bank, acting either as a seller or as a buyer in istisna, can appoint any agent. बैंक जो कि या तो सेलर या बायर के तौर पे काम करता है istisna के अंदर, एक एजेंट अपॉइंट कर सकता है with the consent of the other party, दूसरी पार्टी की consent से, to supervise the manufacturing process or to sell the asset when received. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सुपरवाइज करने के लिए या एसेट को बेचने के लिए जब वो मिल जाए. इट कैन आस्क द क्लाइंट मैन्युफैक्चरर टू एक्ट एज एन एजेंट टू सेल द सब्जेक्ट मैटर. वो क्लाइंट या मैन्युफैक्चरर को कह सकता है एज एन एजेंट कि उसको बेच दे सब्जेक्ट मैटर को. द एजेंसी एग्रीमेंट शुड बी सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इस्तिस्ना एग्रीमेंट. एजेंसी एग्रीमेंट जो होगा वो इस्तिस्ना एग्रीमेंट से इंडिपेंडेंट और डिफरेंट होगा. Banks that are using istisna normally appoint an agent for sale of the asset in the local or foreign markets. Banks जो istisna को इस्तेमाल करते हैं वो एक एजेंट अपॉइंट करते हैं एसेट को सेल करने के लिए लोकल या फॉरेन मार्केट के अंदर. An agency contract can also be used if there is a delay on the part of the purchaser in taking delivery of the subject matter within a particular period of time. एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है अगर डिले हो परचेजर के पार्ट पर डिलीवरी लेने में विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. द सेलर कैन सेल दैट एसेट इन द मार्केट. सेलर इस एसेट को मार्केट में बेच सकता है एंड पे द अमाउंट ओवर एंड अबव हिज ड्यूज, और अमाउंट पे कर सकता है इसके ड्यूज से ज्यादा, इफ एनी, टू द परचेजर. द बैंक कैन ऑल्सो एंगेज एनी कंसल्टेंट फर्म्स टू सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन वर्क. बैंक एंगेज कर सकता है किसी भी कंसल्टेंट फर्म को इस कंस्ट्रक्शन वर्क को सुपरवाइज करने के लिए एंड टू डिटरमिन वेदर द सब्जेक्ट मैटर कंफर्म्स टू द स्टिपुलेटेड स्पेसिफिकेशंस, और डिटरमिन करने के लिए कि क्या सब्जेक्ट मैटर कंफर्म करता है स्टिपुलेटेड स्पेसिफिकेशंस को, और फॉर अदर एडवाइजरी सर्विसेज. द पार्टीज मे म्यूचुअली डिसाइड हु विल बेयर द रिलेटेड सुपरविजन एक्सपेंसेस. पार्टीज म्यूचुअली ये भी डिसाइड कर सकती हैं कि रिलेटेड सुपरविजन एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा. नेक्स्ट इज पोस्ट एग्जीक्यूशन सिनेरियो. जब इस्तिस्ना एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर क्या सिनेरियो है. वर्क इन प्रोग्रेस. बिफोर द मैन्युफैक्चरर स्टार्ट्स वर्क ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इस्तिस्ना, बोथ ऑफ द पार्टीज हैव द राइट टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट. अगर मैन्युफैक्चरर ने अपना काम शुरू नहीं किया सब्जेक्ट मैटर पर इस्तिस्ना के अंदर, तो दोनों पार्टीज के पास राइट है कि वो इसको कैंसिल कर सकती हैं. वंस द सेलर और मैन्युफैक्चरर इनिशिएट्स द वर्क, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स बाइंडिंग एंड एनी चेंज इज पॉसिबल ओनली विद म्यूचुअल कॉन्सेंट. एक दफा काम शुरू हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग बन जाता है और कोई चेंज जो है वो म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ ही होगा. द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर इनएविटेबली बाउंड बाय ऑल ऑब्लिगेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस फ्लोइंग फ्रॉम देयर एग्रीमेंट. पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं वो इनएविटेबली बाउंड होती हैं तमाम जिम्मेदारियों से और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो एग्रीमेंट से फ्लो आउट करेंगे. द परचेजर विल मेक द पेमेंट एज पर द अग्रीड स्केड्यूल and the manufacturer or seller will supply the asset as per specifications agreed. Purchaser payment करेगा agreed schedule के मुताबिक और manufacturer चीज़ों को बेचेगा या supply करेगा according to the specifications agreed. If the subject matter does not conform to the specifications agreed upon, अगर subject matter confirm नहीं करता specifications को जो agree हुई, the customer has the option to accept or to refuse the subject matter. तो कस्टमर के पास ऑप्शन होगा कि वो एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज करे सब्जेक्ट मैटर को. द परचेजर शैल नॉट बी रिकॉर्डेड एज द ओनर ऑफ द मटीरियल्स इन द पोजेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग द एसेट. परचेजर जो है वो ओनर नहीं होगा मटीरियल्स का इन द पोजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर जब तक वो मैन्युफैक्चरर की पोजेशन में है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग द एसेट. इफ द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड बाय द बैंक on an asset sold on istisna is less than the forecast cost, अगर जो एक्चुअल कॉस्ट है बैंक जो इनकर करेगा वो फोरकास्टेड कॉस्ट से कम है और द बैंक गेट्स अ डिस्काउंट फ्रॉम द सब कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ पैरेलल इस्तिस्ना बेसिस, और बैंक को कोई डिस्काउंट मिल जाता है पैरेलल इस्तिस्ना बेसिस के ऊपर, तो द बैंक इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू गिव अ डिस्काउंट टू द परचेजर. बैंक ऑब्लाइज नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो परचेजर को डिस्काउंट दे. एंड एनी एडिशनल प्रॉफिट और लॉस इफ एनी परटेन्स टू द बैंक, और कोई भी एडिशनल प्रॉफिट या लॉस जो है वो बैंक से ही रिलेट करेगा.
The same rule adversely applies when the actual cost of production are greater than the forecast cost. यही रूल adversely apply होता है जब वो कीमतें प्राइस जो है उससे बढ़ जाती है. If so desired by a customer, the Islamic Bank as purchaser may replace an existing contractor to complete a project which has already been commenced by the previous contractor. अगर कस्टमर डिजायर करे तो इस्लामिक बैंक रिप्लेस कर सकता है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो पहले से कमेंस हो चुका प्रीवियस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू. फॉर दिस पर्पस द एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट नीड्स टू बी असेस्ड. इस पर्पस के लिए एग्जिस्टिंग स्टेटस जो है प्रोजेक्ट का उसकी असेसमेंट जरूरी है. वेयर बाय द कॉस्ट ऑफ सच असेसमेंट एंड ऑल लायबिलिटीज एज ऑफ दैट डेट शैल रिमेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर. जबकि कॉस्ट ऑफ सच असेसमेंट या जो लायबिलिटीज हैं वो उस तारीख तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी कस्टमर की. द बैंक वर्किंग एज अ मैन्युफैक्चरर मस्ट अज्यूम लायबिलिटी फॉर ओनरशिप रिस्क. बैंक जो कि मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम करता है उसको ओनरशिप रिस्क की लायबिलिटी अज्यूम करनी चाहिए. मेंटेनेंस एंड तकाफुल एक्सपेंसेस प्रायर टू डिलीवरिंग द सब्जेक्ट मैटर टू द परचेजर. और उसके मेंटेनेंस और तकाफुल एक्सपेंसेस भी उसी की जिम्मेदारी होने चाहिए. एज वेल एज द रिस्क ऑफ थेफ्ट और एनी एबनॉर्मल डैमेज. The manufacturer cannot stipulate in the contract of istisna that he is not liable for defects. Manufacturer ये stipulate नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में इस्तिस्ना के कि वो किसी भी डिफेक्ट का लायबल नहीं है. Therefore, if the bank is the manufacturer for the purpose of an istisna contract, इसलिए अगर बैंक मैन्युफैक्चरर है इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए, it cannot absolve itself from loss on this contract or account. The orderer or purchaser has the right to obtain collateral from the manufacturer for the amount he has paid and as regards delivery of the commodity with specifications. Orderer जो है उसका right है कि वो collateral obtain करे manufacturer से for the amount जो कि वो already pay कर चुका as regards delivery of the commodity, अगर commodity की delivery हो जाती है specifications के साथ and time of delivery और उसी वक्त पर. A voluntary rebate for prepayment is permissible provided it is not agreed in the contract. एक voluntary rebate भी allow होती है अगर prepayment हो जाए अगर वो पहले से contract में शामिल नहीं है. Delivery and disposal of the subject matter. Number 1. Before delivery of the asset to the purchaser, it will remain at the risk of the seller. अगर asset की delivery purchaser को नहीं होती तो ये seller के risk पे रहेगी. Any loss to the raw material or to the item in the process of manufacturing will be borne by him. कोई भी loss raw material के केस में अगर हो जाता है तो वो manufacturer ही उसे bear करेगा. After delivery, risk will be transferred to the purchaser. तो delivery के बाद risk purchaser assume करेगा. Possession of goods can be physical or constructive. Possession of goods जो है physical भी हो सकती है और constructive भी हो सकती है, depending upon the nature of the asset and transfer of the ownership risk. जो कि depend करेगा एसेट की नेचर के ऊपर और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के ऊपर. ट्रांसफरिंग रिस्क एंड डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू यूज एंड यूटिलाइजेशन कंजम्पशन आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजीशन. ट्रांसफरिंग रिस्क और जो डेलीगेटिंग अथॉरिटी है इसके इस्तेमाल की और उसकी यूटिलाइजेशन या कंजम्पशन की, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं कंस्ट्रक्टिव पोजीशन के. फॉर दिस देयर शुड बी अ डिमार्केशन लाइन बिटवीन हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर ऑफ पोजीशन. इसके लिए एक बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केशन लाइन होनी चाहिए हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर ऑफ पोजीशन के दरमियान. इफ अ मैन्युफैक्चर्ड एसेट इज डिलीवर्ड बिफोर द एग्रीड डेट, अगर मैन्युफैक्चर्ड एसेट डिलीवर हो जाता है एग्रीड डेट से पहले, द परचेजर शुड एक्सेप्ट इट इफ द एसेट मीट्स द स्टिपुलेटेड स्पेसिफिकेशंस. परचेजर को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए अगर एसेट स्टिपुलेटेड स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल करता है. He can refuse to accept the goods if these are not as per the agreed specifications. उसे रिफ्यूज करना चाहिए चीज़ों को एक्सेप्ट करने से अगर वो एग्रीड स्पेसिफिकेशंस के ऊपर उसके मुताबिक नहीं है. और देयर इज सम अदर जेन्युइन जस्टिफिकेशन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग, या कोई और उसके पास जेन्युइन जस्टिफिकेशन है इसको ना एक्सेप्ट करने की बिफोर द एग्रीड डेट. इस्तिस्ना स्टैंडर्ड क्लॉज 6/1 to 6/3. If the condition of the subject matter does not conform to the contractual specifications at the date of delivery,
अगर कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो है वो कंफर्म नहीं करती कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेसिफिकेशन को डेट ऑफ डिलीवरी पर, द अल्टीमेट परचेजर हैज द राइट टू रिजेक्ट द सब्जेक्ट मैटर। तो अल्टीमेट परचेजर जो है उसके पास राइट है कि वो सब्जेक्ट मैटर को रिजेक्ट कर दे और टू एक्सेप्ट इट इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, या उसको एक्सेप्ट कर ले प्रेजेंट कंडीशन में, इन विच केस द एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिस केस में एक्सेप्टेंस जो है वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस को कॉन्स्टिट्यूट करेगी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ऑफ इस्तिस्ना। Islamic banks can use istisna for manufacturing of high technology goods like aircrafts, ships, buildings, dams, highways, etc. Islamic banks istisna इस्तेमाल कर सकते हैं for the manufacturing of high technology goods, जिसमें aircraft, ship, building, dam या highway शामिल है। It can also be used for housing and export financing, meeting working capital. ये इस्तेमाल कर सकते हैं हाउसिंग एंड एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग को भी, जिसमें वर्किंग कैपिटल मिलता हो, रिक्वायरमेंट्स इन इंडस्ट्रीज वेयर सेल ऑर्डर्स आर रिसीव्ड इन एडवांस, जहां पर सेल ऑर्डर्स जो हैं वो एडवांस में मिल जाते हैं। पोटेंशियल एरियाज आर गिवन बिलो। फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल एरियाज एंड हाउसिंग फाइनेंस स्कीम्स, financing high technology industries such as the aircraft industry, locomotive and shipbuilding industries. Risk management in istisna. Banks could face the following risks in istisna based financing: settlement risk, price risk, delivery risk, possession risk or market risk. As a whole, risks in istisna would be mitigated by taking proper collateral, performance bonds, technical expertise in the relevant areas for timely and effective marketing and for ensuring cost effectiveness, by resorting to suitable takaful policies, by choosing good clients and by adopting suitable capital budgeting and liquidity management policies. As little is available so far on the practical application of istisna, we shall also give a number of hypothetical case studies. तो थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। रिस्क मिटिगेशन इन इस्तिस्ना को। ओनरशिप ऑफ मटेरियल। द इस्लामिक बैंक इज नॉट द ओनर ऑफ द मटेरियल्स इन द पोजीशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग द एसेट। इट कैन हैव नो क्लेम ऑन इट इन द केस ऑफ एनी नॉन परफॉर्मेंस। ये जो मटेरियल होता है इसके ऊपर ओनरशिप जो है वो इस्लामिक बैंक्स की नहीं होती, तो इनका कोई क्लेम नहीं होगा अगर कोई भी नॉन परफॉर्मेंस होती है। तो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? सिक्योरिटीज अवेलेबल विद द बैंक। बैंक पहले से अपने साथ सिक्योरिटी रखता है। डिलीवरी रिस्क। द बैंक मे बी अनेबल टू कंप्लीट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एज स्केड्यूल्ड ड्यू टू लेट डिलीवरी ऑफ कंप्लीटेड गुड्स बाय द सब कॉन्ट्रैक्टर इन पैरेलल इस्तिस्ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रूल ऑफ शर्ते जजाई, द बैंक कैन पुट इन द इस्तिस्ना एग्रीमेंट अ क्लॉज टू रिड्यूस द इस्तिस्ना प्राइस इन केस ऑफ डिले। तो सेल नॉट परमिसिबल बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी से पहले सेल की इजाजत ना होना। सेल ऑफ इस्तिस्ना गुड्स इज नॉट अलाउड बिफोर टेकिंग फिजिकल पोजेशन। दिस मे लीड टू एसेट प्राइस एंड मार्केटिंग रिस्क। अब चूंकि फिजिकल पोजेशन से पहले आप इसको बेच नहीं सकते, तो इसमें एसेट प्राइस या मार्केटिंग रिस्क शामिल हो सकता है। हाउ टू मिटिगेट दैट? द बैंक कैन टेक अ प्रॉमिस टू परचेज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड कैन मेक अरेंजमेंट्स फॉर सेल थ्रू एजेंसी। बैंक प्रॉमिस ले सकते हैं टू परचेज तीसरी पार्टी से और अरेंजमेंट्स कर सकते हैं इसको थ्रू एजेंसी सेल करने का। सेल नॉट परमिसिबल बिफोर डिलीवरी। Sale of istisna good is not allowed before taking physical possession. This may lead to asset price and marketing risk. तो of course ये एजेंसी के थ्रू इसको मिटिगेट किया जा सकता है। Next is quality risk. The Islamic bank gets delivery of inferior quality manufactured goods which also may affect the original contract. Islamic bank हो सकता है इसको डिलीवरी inferior quality की हो तो ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को ही ख़राब कर दे। तो द बैंक कैन ऑब्टेन अ गारंटी ऑफ क्वालिटी फ्रॉम द ओरिजिनल सप्लायर। तो बैंक जो है इसकी गारंटी ले सकता है। तो दीज वर मल्टीपल नेचर ऑफ रिस्क जिनको इस तरीके से हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं जिसमें लेट्स डिस्कस कि डिफरेंसेस बिटवीन इस्तिस्ना एंड सलम एंड इजारा, इनके दरमियान में डिफरेंसेस क्या है। इस्तिस्ना, द सब्जेक्ट ऑफ इस्तिस्ना इज ऑलवेज द थिंग विच नीड्स मैन्युफैक्चरिंग।
इस्तिस्ना के अंदर हमेशा वो चीज़ सब्जेक्ट मैटर होगा जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करवानी पड़ेगी. इन सलम, द सलम सब्जेक्ट कैन बी ईदर नेचुरल प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. सलम सब्जेक्ट जो है वो या तो नेचुरल प्रोडक्ट्स होंगी या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगी जो पहले से तैयार हैं. इस्तिस्ना में द प्राइस इन इस्तिस्ना डज नॉट नेसेसरली नीड टू बी पेड इन फुल इन एडवांस. इस्तिस्ना के केस के अंदर ज़रूरी नहीं कि प्राइस शुरू में ही पे कर दी जाए, बट द प्राइस इन सलम हैज़ टू बी पेड इन फुल इन एडवांस. वहाँ पे सारी प्राइस शुरू में देनी पड़ेगी. इस्तिस्ना कैन मेनली बी conducted for kimi goods, all units of which are different from one another in terms of price or specification. इस्तिस्ना mainly उन चीज़ों के बारे में होता है जो तमाम एक दूसरे से different होती हैं, but it can also be used for items having trademarks wherein all units might be similar in price and specification. जबकि trademarks के बारे में भी हो सकता है जिनकी of course specifications, price जो है वो एक जैसी भी हो सकती हैं. जबकि सलम, the subject of salam is a liability on the seller and thus must consist of fungible mithli goods, all units of which are similar, so that if the seller is not able to produce the goods by himself, he can get the same from the market. Penalty in the form of a reduction in the price on account of a delay in delivery will reflect the income of the purchaser. Penalty जो है जो कि इस्तिस्ना की प्राइस को डिक्रीज करेगी वो उसकी इनकम कहलाएगी, लेकिन सलम के अंदर पेनल्टी जो है वो चैरिटी को जाएगी. As long as work has not started, istisna is non-binding. Any of the parties can revoke the contract. अगर काम शुरू नहीं हुआ तो कोई पार्टी भी इस्तिस्ना को रिवोक कर सकती है, लेकिन इन सलम इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. वंस एग्जीक्यूटेड, एक दफा हो गया तो इट कैन नॉट बी रिजाइंडेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर. तो इसको दूसरी पार्टी की इजाजत के बगैर रिजाइन नहीं किया जा सकता. इस्तिस्ना, द मैन्युफैक्चरर यूजेस हिज ओन मटेरियल्स एंड द सेल प्राइस इज फिक्स्ड. मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना मटेरियल खुद से ओन करता है और प्राइस फिक्स करता है, जबकि इजारा के अंदर द मैन्युफैक्चरर ऑन एन उजरा बेसिस यूजेस द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द बायर एंड ही इज पेड द एग्रीड वेजेस, और उसको वेजेस दी जाती हैं. तो हम इससे पहले इस्तिस्ना और सलम के दरमियान डिफरेंसेस चेक कर रहे थे. अब चूंकि इस्तिस्ना और जो इजरा है उसके दरमियान भी कुछ कॉमन चीज़ें हैं. नाउ लेट्स हैव अ डिफरेंस बिटवीन इस्तिस्ना एंड इजरा. तो पहला डिफरेंस हमने देखा. नाउ द सेकंड डिफरेंस इज इस्तिस्ना कैन बी ऑफ एनीथिंग दैट नीड्स मैन्युफैक्चरिंग. इस्तिस्ना किसी भी चीज़ का हो सकता है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग ज़रूरत हो. इजारा कैन बी ओनली ऑन दोज एसेट्स द कॉर्पस ऑफ विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड विद यूज. इजारा सिर्फ उन चीज़ों के बारे में हो सकता है जिनका कॉर्पस जो है वो इस्तेमाल करने से कंज्यूम ना हो. इन इस्तिस्ना, एसेट रिस्क इज ट्रांसफर्ड टू द परचेजर सून आफ्टर डिलीवरी ऑफ द आइटम टू हिम एंड ही हैज टू पे द प्राइस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस टू द एसेट. इस्तिस्ना में एसेट रिस्क ट्रांसफर हो जाता है परचेजर को जैसे ही डिलीवरी होती है और उसको पे करना होता है प्राइस को, इररिस्पेक्टिव कि उसके साथ क्या हो. लेकिन इन इजारा एसेट रिमेन्स विद द ओनर, उसी के पास रहता है, जबकि लेसी जो है उसको सिर्फ रेंटल्स देने होते हैं जितना वो एसेट को कंज्यूम करेगा. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इस्लामिक बैंक्स एज सेलर इन इस्तिस्ना. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस्लामिक बैंक्स कैसे करते हैं जब ये एज ए सेलर काम करते हैं. इस्तिस्ना कॉस्ट्स. इस्तिस्ना कॉस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट shall be recognized in as istisna work in progress account or istisna cost account in the case of a parallel contract. जहाँ पे एक पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा वहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को मिलाकर या तो इस्तिस्ना वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाया जाएगा या फिर इस्तिस्ना कॉस्ट अकाउंट बनाया जाएगा और उसमें शामिल होंगी. द अमाउंट बिल्ड टू अल मुस्तस्नी बायर shall be debited to an istisna receivable account and credited to an istisna billing account. जो अमाउंट बिल की जाएगी बायर को उसमें डेबिट किया जाएगा इस्तिस्ना रिसीवेबल अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे इस्तिस्ना बिलिंग अकाउंट को. बैलेंस ऑफ द इस्तिस्ना बिलिंग अकाउंट शेल बी ऑफसेट अगेंस्ट द इस्तिस्ना वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट. जो उसका बैलेंस होगा इस्तिस्ना बिलिंग अकाउंट का उसको बैलेंस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के साथ. एनी प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शेल बी रिकॉग्नाइज्ड एज डेफर्ड कॉस्ट एंड ट्रांसफर टू द इस्तिस्ना वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट अपॉन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है उसको डेफर कॉस्ट के अकाउंट में लेंगे और उसको ट्रांसफर करते चले जाएंगे इस्तिस्ना वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के अंदर. नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इन पैरेलल इस्तिस्ना. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इन पैरेलल इस्तिस्ना के साथ क्या करेंगे. इस्तिस्ना अ कॉस्ट
istasna cost shall include the price fixed in a parallel istasna contract. istasna cost के अंदर price fixed जो कि parallel istasna contract है उस वो शामिल होगी. Progress billings to al mustasni shall be debited to the istasna receivable account and credited to the istasna billing account. अब जो progress billing है उसके अंदर istasna receivable account debit हो जाएगा और istasna billing account credit हो जाएगा, और जो बैलेंस होगा istasna billing account का वो work in progress को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. istasna revenue and profit. istasna revenue is the price agreed. istasna का रेवेन्यू वो होगा जो कि प्राइस जिसके ऊपर एग्रीमेंट है, इंक्लूडिंग द इस्लामिक बैंक्स प्रॉफिट मार्जिन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी है, एंड रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. और इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कोई भी मेथड इस्तेमाल करके, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड या कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड. जितना कंप्लीट हुआ उसके ऊपर प्रॉफिट लगाया जा सकता है या फिर पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉफिट लगाया जा सकता है. Deferred profits. These shall be recognized using either of the following methods. Deferred profits के अंदर कोई सा भी मेथड इस्तेमाल करके इनको किया जा सकता है. नंबर 1, proportionate allocation, preferred method. पहली तो ये है कि proportionate allocation हो, जितना 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 हिस्सा है, जिसका हिस्सा है उतना उसको ट्रांसफर कर दिया जाए. As and when each installment is received, जितनी जितनी इंस्टॉलमेंट जब जब रिसीव होती गई. Early settlement. On advance payment made by the buyer, the Islamic Bank may waive part of its profits that shall be deducted from both the istasna receivable account and the deferred profits account. Advance payment जो buyer करता है, Islamic Bank उसमें से part of profit waive करता चला जाता है और उसको deduct करता जाता है istasna receivable account में से और deferred profit account में से. The above shall apply if the facts are the same except the bank did not grant a partial reduction of the profit when the payment was made. ये जो ऊपर बात की गई ये अप्लाई होगी वहां पर एक्सेप्ट उन जगहों के जहां पर बैंक ने पार्शियल रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट जो है वो अलाउ नहीं किया जब पेमेंट की जा रही थी, बट रीइंबर्स्ड दिस अमाउंट टू द बायर आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट्स, और इसने रीइंबर्स कर दिया बायर को. देन पैरेलल इस्तिस्ना रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, इनको कैसे ट्रीट करते हैं? रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड parallel istasna shall be measured and recognized according to the percentage of completion method. रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है पैरेलल istasna के अंदर जितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसके मुताबिक उसका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. The recognized profit portion of istasna profit shall be added to the istasna cost account. जो recognized portion of istasna profit है वो istasna cost account में ऐड कर दिया जाता है. If the contract price or part is to be paid following the completion of the contract, accounting treatment of deferred profits shall be applicable. Now, change orders, additional claims and maintenance costs. Change orders and additional claims. The value and cost of change orders shall be added to istasna revenue and cost respectively. जो वैल्यू और कॉस्ट ऑफ चेंज है ऑर्डर की वो ऐड की जाएगी istasna रेवेन्यू और कॉस्ट में. If the required conditions for additional claims are met, an amount of revenue shall be recognized equal to the additional cost caused by the claim. अगर conditions पूरी हो जाती हैं additional claim की तो जो amount of revenue है वो recognize की जाएगी बराबरी के साथ additional cost by the claim. If the required conditions are not met in full or in part for recognizing additional claims, the estimated value of these claims shall be disclosed in notes to the financial statements. And if parallel istasna exists, अगर parallel istasna मौजूद है, accounting treatments as mentioned above shall apply. However, the cost of such shall be determined by the contractor with the approval of the Islamic Bank. Then, accounting treatment of maintenance and warranty costs. These shall be recognized on an accrual basis and matched with the recognized revenue. ये accrual basis के ऊपर चार्ज की जाएंगी, recognize होंगी और मैच की जाएंगी recognized revenue के साथ. Actual cost shall be charged against the maintenance and warranty allowance account. If parallel istasna exists, these shall be accounted for on a cash basis. अगर parallel istasna exist करता है तो ये cash basis पर account for होंगी.
मेजरमेंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, फाइनेंशियल पीरियड के एंड पे कैसे मेजरमेंट होगी। इस्तिस्ना वर्क इन प्रोग्रेस shall be measured and reported at cash equivalent value if applying the percentage of completion method for recognition of profit and revenue। इस्तिस्ना वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये मेजर होगा और रिपोर्ट होगा कैश इक्विवेलेंट वैल्यू के बेसिस के ऊपर अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड अप्लाई हो रहा है प्रॉफिट और रेवेन्यू की रिकग्निशन के लिए। एनी एक्सपेक्टेड लॉस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड shall be recognized and reported in the income statement। कोई सा एक्सपेक्टेड लॉस जो है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड वो रिकॉग्नाइज होगा और रिपोर्ट होगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इन द केस ऑफ पैरेलल इस्तिस्ना द इस्तिस्ना कॉस्ट शैल बी ट्रीटेड एज मेंशन्ड अबव। पैरेलल इस्तिस्ना के अंदर इस्तिस्ना कॉस्ट जो है वो ऐसी ट्रीट होगी जैसे ऊपर बताया गया। एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू फेलियर ऑफ अ सब कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज लॉस इन द इनकम स्टेटमेंट। एडिशनल कॉस्ट जो है सब कॉन्ट्रैक्टर के फेलियर की वजह से वो रिकॉग्नाइज की जाएंगी एज अ लॉस इन द इनकम स्टेटमेंट। नाउ ये तो था जब एज ए सेलर हम ले रहे होते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इस्लामिक बैंक को। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इस्लामिक बैंक्स एज बायर इन इस्तिस्ना। इस्तिस्ना बिलिंग ऑफ कंप्लीटेड जॉब्स, बिलिंग कैसे करते हैं। प्रोग्रेस बिलिंग्स शैल बी डेबिटेड टू द इस्तिस्ना अकाउंट and presented as assets and financial statements and corresponding credit shall be made to the istisna accounts payable account। तो जो प्रोग्रेस बिलिंग अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे और इस्तिस्ना अकाउंट पेबल को क्रेडिट करेंगे। द अबव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शैल आल्सो बी एप्लीकेबल टू अ पैरेलल इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट, उस पर भी ऐसे ही अप्लाई होगा। रिसीट ऑफ कमोडिटी, द कमोडिटी रिसीव्ड इफ मीटिंग द स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो कमोडिटी रिसीव हुई अगर स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड जो थी वो फुलफिल होती हैं तो इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इफ पैरेलल इस्तिस्ना एग्जिस्ट ऑन डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी टू द क्लाइंट द बैलेंस ऑफ द इस्तिस्ना कॉस्ट अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू एन एसेट अकाउंट। लेट डिलीवरी ऑफ कमोडिटी, द इस्लामिक बैंक शैल टेक कॉम्पनसेशन फ्रॉम द परफॉर्मेंस बॉन्ड इन द केस ऑफ नेग्लिजेंस और फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। इस्लामिक बैंक जो है वो कॉम्पनसेशन लेगा परफॉर्मेंस बॉन्ड के केस के अंदर अगर नेग्लिजेंस या फॉल्ट सेलर के पार्ट पर आता है। एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स शैल बी मेड इफ द परफॉर्मेंस बॉन्ड इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रिएट की जाएगी अगर जो इन्होंने परफॉर्मेंस बॉन्ड लिया है वो सफिशिएंट नहीं है अमाउंट को कॉम्पनसेट करने के लिए। कमोडिटी नॉट कंफर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशन, if the commodity is declined by the bank due to non-conformity to specifications, अगर commodity decline हो जाती है बैंक की तरफ से non-conformity of specifications, अगर specifications fulfill नहीं हुई, any unrecovered progress payments made to the seller shall be recorded as accounts receivable। तो जितनी भी unrecovered progress payments थी वो सारी की सारी receivable के तौर पे ट्रीट होंगी। and an allowance for doubtful debts shall be made, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया जाएगा अगर जरूरत पड़ी। इफ द बैंक डज नॉट डिक्लाइन अ डिस्क्रिपेंट कमोडिटी, अगर बैंक डिफेक्टिव कमोडिटी को वापस नहीं करता, इट शैल बी मेजर्ड एट द लोअर ऑफ द कैश इक्विवेलेंट वैल्यू और द हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ये रिकॉर्ड की जाएगी या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस पर या फिर जितनी कैश उसके बारे में पे की, दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगी। एनी लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट इन विच द लॉस इज रियलाइज्ड। कोई भी लॉस इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होगा और लॉस को रियलाइज किया जाएगा। बायर रिफ्यूजेस टू रिसीव द कमोडिटी पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट, अगर पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट है और बायर कमोडिटी को रिसीव करने से इनकार कर देता है। ऑन रिफ्यूजल टू रिसीव अ कमोडिटी ड्यू टू इट्स बीइंग डिस्क्रिपेंट इट शैल बी मेजर्ड एट द लोअर ऑफ द कैश इक्विवेलेंट वैल्यू और द हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर कमोडिटी रिसीव करने से इनकार हो जाता है बीइंग डिफेक्टिव, तो ये मेजर होगी लोअर ऑफ कैश या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस पर। एनी लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट इन विच द लॉस इज रियलाइज्ड। तो यहां तक थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ इस्तिस्ना। इस्तिस्ना के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए कि अगर जो इस्लामिक बैंक है वो एज ए बायर उसको लेकर चलता है, फिर हम लोगों ने ये भी बात की कि अगर वो एज ए सेलर लेकर चलता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो बिफोर कंक्लूडिंग द लेक्चर या बिफोर एंडिंग द लेक्चर लेट्स हैव अ ग्लिम्प्स कि आज हम लोगों ने इसके अंदर क्या कुछ किया।
तो थोड़ी सी समरी डिस्कस किए लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या कुछ किया। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज के लेक्चर को फ्रॉम द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इस्लामिक बैंक्स फॉर सलम एंड पैरेलल सलम। चूंकि हम लोग सलम को ख़त्म कर चुके थे पिछली क्लास के अंदर, तो हम लोग ऑफ कोर्स सलम के ऊपर जो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था वो रह गया था, तो उसको हम लोगों ने इस क्लास के अंदर पहले डिस्कस किया। देन वी टॉक्ड अबाउट इस्तिस्ना ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की। तो इस्तिस्ना को कैसे डिफाइन किया था कि जब भी हम किसी चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं जो कि हमें फ्यूचर में मिलेगी, अनआइडेंटिफाइड चीज़ का स्पेसिफिकेशंस दे देते हैं और मैन्युफैक्चरर हमें या तो खुद बनाकर या किसी थर्ड पार्टी से बनवा कर देता है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज इस्तिस्ना। लेकिन इस्तिस्ना के अंदर पेमेंट जो है वो सारी की सारी इन एडवांस नहीं होती है, इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है। इसको डिटेल में डिस्कस करने के बाद फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर ऑफ इस्तिस्ना के ऊपर बात की कि इसके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ अभी मैन्युफैक्चर ना हुई हो। सब्जेक्ट मैटर में जो जो चीज़ें आ सकती थी वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की, और शरिया के मुताबिक जूरिस्ट क्या कहते हैं कि कौन कौन से आइटम्स कैन बी कंसिडर्ड एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इस्तिस्ना। फिर हम लोगों ने प्राइस इन इस्तिस्ना के ऊपर बात की कि इस्तिस्ना में प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी, और उसको डिटेल में डिस्कस किया कि इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे कैसे जो है एक्यूमुलेट होंगी इसकी प्राइस को डिसाइड करने के लिए। फिर इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि प्राइस विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी हो सकती है, कि अगर मटेरियल की प्राइस चेंज हो जाती है या कोई आपकी इंटरवीनिंग कंटिजेंसीज आ जाती हैं उनके साथ, तो आप प्राइस को विद द म्यूचुअल कॉन्सेंट बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फिर हमने पेनल्टी क्लॉज की बात की। तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई पेनल्टी कॉज होती है तो वो पेनल्टी जो है उस परचेजर की इनकम में ऐड होती है, जबकि बाकी जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस किए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए, उनके अंदर पेनल्टी जो है वो सीधी सीधी चैरिटी अकाउंट को जाती है, चूंकि वहां पर पेनल्टी हम लोग रिबा के तौर पर देख रहे होते हैं। फिर हम लोगों ने इसके बाद बाइंडिंग नेचर ऑफ एन इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया। ये भी बड़ा क्लियर कट था। सलम के अंदर तो हमने बात की थी कि ये सलम जो है एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाए तो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है और म्यूचुअल कॉन्सेंट के बगैर उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, जबकि यहाँ पर इस्तिस्ना के अंदर अगर आपने काम शुरू नहीं किया तो किसी भी पार्टी की तरफ से इसको रिवोक किया जा सकता है, लेकिन एक दफ़ा काम शुरू हो जाए तो फिर ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देन वी टॉक्ड अबाउट गारंटीज, कि गारंटीज जो हैं इस्तिस्ना के अंदर किस किस तरीके से डील होती हैं और उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस किया पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इसको भी हमने डिटेल में देखा। शरिया की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने इसके अंदर डाला। फिर इस्तिस्ना एंड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, इस्तिस्ना और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या था, थर्ड पार्टी एज एन एजेंट हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर वी टॉक्ड अबाउट पोटेंशियल ऑफ इस्तिस्ना, इस्तिस्ना का पोटेंशियल क्या है। देन वी टॉक्ड अबाउट रिस्क मैनेजमेंट इन इस्तिस्ना, तो बिल्कुल हमेशा की तरह हमने जो मल्टीपल रिस्क मौजूद हैं उनकी नेचर को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उससे रेलेवेंट उसके सोल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया और फिर दोनों को मैच किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज़ डिस्कस की कि इस्तिस्ना का सलम के साथ क्या डिफरेंस है। अब चूंकि इस्तिस्ना कहीं से इजारा से भी मिलता जुलता है, तो फिर हमने इस्तिस्ना और इजारा के दरमियान भी डिफरेंसेस को बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया। जब इस्तिस्ना को अच्छे तरीके से समझ लिया तो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस्तिस्ना का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अब चूंकि पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो जब इस्तिस्ना में बैंक जो है वो एज ए बायर होगा तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेगा, जब एज ए सेलर होगा तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। एंड देन वी डिस्कस्ड ओवरऑल समरी ऑफ द इस्तिस्ना। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस उम्मीद से आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि ज़िंदगी रही तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।